Children are very much aware of what is going in this world. We parents of middle age are not even, they are in between, sandwiched between their own parents and their children. True, true, I With, agree. with Good afternoon, ma'am. Welcome to Sound Mind. Thank you so much for joining and welcome to the channel. want that my session should go on very nicely and people should know how to manage their own family as well as the children and their parenting while they grow old. Then also parents are always parents. So there, by marriage, the responsibilities doesn't end. In fact, after marriage it increases. People say that शादी कर दीजिए, आपकी एक जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी. I say I have done one marriage of my daughter, but मैंने देखा शादी के बाद everything doubles up because you have got one more son. You have to take care of him also. You have to hear him out also. There's so many things which are very little, but if you care, then only you will be successful. Right. Okay. काफी लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने अभी बताया. ये सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं, आई थिंक यंग एडल्ट्स को जो दैट वो फेज में है उन्हें भी काफी हेल्प करेगा. सो मोस्ट सब लोग जैसे अब देखिए यंगर पेरेंट्स का क्या होता है, जब पेरेंट बनते हैं, बनना पेरेंट 9 months वेट करना, इट्स कि what bundle of joy you are going to get. बस ये होता है. उसके बाद जब वो आ जाता है तो हर एक दिन माँ यही सोचती है कब थोड़ा सा और बड़ा होगा, कब थोड़ा सा और बड़ा होगा, रोएगा कब. देन he or she becomes toddler, तो वो इधर उधर भागता है, शैतानी करता है. तब कहते इससे थोड़ा और बड़ा हो जाए. एंड देन वी रियलाइज कि जब वो और बड़े हो जाते हैं तो उनकी दिक्कतें और बड़ी वाली हो जाती है. So this is a cycle which will never stop. The day it stops is when you close your eyes. For a mother and for father, everyone in the family, mostly parents, they are the ones who take care. And in India, it is in our culture कि कुछ भी है तो they help out people. मम्मी पापा मतलब टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे कभी कभी. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ कर नहीं सकते, बट द ओनली थिंग दे नीड योर सपोर्ट एंड हेल्प and guidance. And sometimes they don't even need that because आजकल बच्चे बहुत सॉर्टेड है. कुछ माँ बापों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो हमसे कुछ पूछता ही नहीं है. अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि जो वो अपने आप से कर रहा है उसको उसको थोड़ा सा और ज्यादा प्रोत्साहन दीजिए. Whatever he is doing or she is doing, help him out, guide him if he needs. Don't interfere otherwise. Just keep on doing. And if you watch something which is going to be wrong in the longer run, just tell him. Don't just advise him. People think they will put their full effort and then only children come. No, children are very much aware of what is going in this world. We parents of middle age are not even, they are in between, sandwiched between their own parents and their children. True, I So agree. with what happens that they look after their parents, their outlook, उसको वहां बैलेंस करते हैं. यहाँ आके बच्चा उससे भी उनसे भी 4 कदम आगे है.
So that thing is the thing which matters. True. तो पेरेंट्स कभी कभी ना बहुत ज्यादा एक्चुअली दे बिकम कंफ्यूज्ड कि हमने तो ऐसा नहीं करा था, लेकिन दे टेंड टू फॉरगेट कि इट इज नॉट 19th सेंचुरी नहीं है ये, 20th सेंचुरी से भी आगे है। 21st तो century. वो टाइम गैप का बीच में खुद को चेंज करना धीरे धीरे, नॉट ऑल ऑफ अ सडन, धीरे धीरे चेंज करना is necessary nowadays to Hmm. understand. Like, for example, you take me only. I used to hate computers. Hmm. I used to think कि यार ये क्या बला आ गई है, ये टक टक करते रहो सारे दिन। बट नाउ सी, आई हैव स्टार्टेड, मतलब लैपटॉप तो पीछे छूट गया। नाउ आई हैव स्टार्टेड टेकिंग मीटिंग्स, टेकिंग सेमिनार, वेबिनार्स एंड ऑल। मेरे को कभी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी सैवी हो जाऊंगी। बट विद द टाइम यू हैव टू बी, यही चीज मैं कहती हूँ और पेरेंट्स से भी, फोन को देख के चिढ़े नहीं। अगर अगर कोई घर की मीटिंग है, गेट टुगेदर है, काइंडली टेल देम विद वेरी स्वीट वॉइस दैट प्लीज बच्चों अपने फोन साइलेंस पे कर दो, जो मिस कॉल आएंगी आप बाद में देख लेना। इन बिटवीन जो फैमिली गेट टुगेदर है, डोंट इंटरफेयर विद। इसमें आप रौब जमा के कहोगे कोई नहीं सुनने वाला, प्यार से कहोगे सब सुनेंगे। Hmm. हाँ, कोई अर्जेंसी की कॉल आएगी तो नेचुरली दे विल गो एंड टेक, उसमें आपको रोक लगानी नहीं चाहिए। तो देर आर डूज एंड डोंट्स, एवरीथिंग इज गॉट प्लस एंड माइनस। Hmm. जितने प्लस है माइनस भी उतने ही है। तो इट इज व्हाट यू चूज आउट ऑफ लाइफ। True. आप True. अपने बच्चों की गलतियां देखोगे या उनकी अच्छाइयां देखोगे? तो आपकी अच्छाई किसमें है कि बच्चों की अच्छाई देखो और Hmm. खुश हो। देखो, इम्परफेक्शन, कोई भी परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्शन हर एक में होते हैं, Hmm. Hmm. किस में नहीं है। मेरे में भी है, मुझे गुस्सा आता है तो भयंकर आता है। तो दैट इज नॉट द पॉइंट, पॉइंट इज दिस, दैट व्हाट यू आर थिंकिंग इज एप्लीकेबल और नॉट। तो मेंटल हेल्थ का ध्यान बचपन से ही रखना चाहिए। Hmm. ना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, ना ज्यादा उसको इतना पैम्पर करो कि वो आपकी बात सुने ही ना। Hmm. वो भी गलत है। बच्चे को थोड़ा सा डांटना और थोड़ा सा स्पैंक करना इज नेसेसरी Hmm. टिल 12 के बाद 13 से you have to become a friend. Don't hit them ever because they'll retaliate. वो उनके जो फिजिकल तो दिखता नहीं है, इंटरनल हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं तब माँ बाप नहीं समझते, नहीं मानते, नहीं सोचते, कहते बच्चे ही तो है। ना वो बच्चे होते उस टाइम, ना वो बड़े होते। तो True. क्या True. होता है, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी विग्रस चेंज इन body, in mental, in voice change, and everything is changing. He is so confused. The child is so confused. You have to be patient with it. Everything do with patience. बच्चे कहते, माँ बाप कहते हैं मेरे से कि हमारे बच्चे तो हमारी बात ही नहीं सुनते। तो देखो, आप जितना टाइम बच्चों को दोगे, बच्चे उतना अच्छी तरह से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा नहीं है एक दो बारी नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि कभी कभी करते हैं कभी कभी नहीं करते। बट डोंट थिंक अबाउट द नहीं करते वाले, थिंक ऑफ द टाइम दे लिसन टू यू। आज भी मैं अपने माँ बाप से अगर कभी कभी कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती हूँ, Hmm. तो मैं खुद एक काउंसलर होने के बाद बोलती हूँ कि मामा, आपको मैं सच बताती हूँ तो आपको गुस्सा आ जाता है। आई एम टेलिंग यू रियल फैक्ट। Hmm. और आपने बचपन में मेरे को और हमारे नाना, मेरे ग्रैंडपा ने मेरे को यही सिखाया, हमेशा सच बोलना। अब आप ये बताओ इन दोनों में से क्या सही है?
मुझे पता है कि क्या सही है, लेकिन आपको वो सही क्यों नहीं पसंद आता बताओ? हम्म। तो इट अब हैपेंस। राइट राइट। पीपल वांट टू, आफ्टर द एज पीपल वांट टू हेयर देयर एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन के लिए आप वो काम भी करिए। ट्रू। दैट इज द मेन थिंग। यस मैम They यस। forget to do the good part, they want the award। आपको केक तो चाहिए लेकिन अवॉर्ड नहीं करना है उसके लिए। हम्म आजकल तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इंटॉल टुवर्ड्स intolerance and impatience, which हम्म is still one step worse। हम्म। Patience is a factor which can make you slow but will reward you thoroughly। Total parenting is a total patience and tolerance। तो पूछो। जब आप बात कर रहे थे कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए, और अभी अभी जो माहौल है, तो मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि जब आप पेरेंट नहीं थे, जब आप लाइक यू वेर इन योर अर्ली 20s एंड देन मतलब वो डिसीजन लेने का टाइम था, तो आप आपके पेरेंट्स को कैसे देखते थे, पेरेंटिंग को कैसे देखते थे? आपने आपने अभी बताया कि अभी आप आपके पेरेंटिंग स्टाइल को कैसे इवॉल्व कर रहे हो और आपके पेरेंट्स को किस तरीके से देखते हो। तो तब लाइक बैक देन इन योर 20s There is वाज a इट? there big gap हम्म between these two things। हम्म जब हमारी पेरेंटिंग करने की बारी थी, तब हम्म हमें पेरेंटिंग के नाम पर जीरो पता था। हम्म कुछ पता ही नहीं था। हम्म जैसे जैसे करते थे, जो ठीक लगता था वो करते थे। हम्म जैसे जैसे मम्मी ने बताया, जैसे जैसे दे। और मैं ज्यादातर बाहर रही हूँ। हम्म आई हैव ऑलवेज बीन नेवर विद मम्मी। छुट्टियों में आती थी, बिकॉज माय हस्बैंड्स जॉब, ही इज एन एयरफोर्स ऑफिसर, हम्म ऑफ कोर्स रिटायर्ड। तो वी वर ऑलवेज ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस। तो हमें वैसे भी इतना टाइम मिलता ही नहीं था। और बाकी वहां पे माहौल इतना अच्छा होता है कि यू कम यू गो, बच्चे कब बड़े हो गए हमें पता ही नहीं चला। ओके। बट आई वॉज प्रिटी स्ट्रिक्ट विद माई बच्चों के साथ। एक हम्म तो मैंने हमेशा से एक चीज रखी है, अगर बच्चों को प्रॉमिस करो हम्म तो प्रॉमिस को कभी तोड़ो नहीं, हम्म उसको पूरी करो। या तो प्रॉमिस मत करो। और अगर बच्चों से कुछ कहो तो उसको पूरा करो। कि आपके ऊपर स्ट्रेस और प्रेशर हर तरह से इतना ज्यादा है कि यू डोंट नो हाउ टू डील विद योर ओन प्रेशर्स। हम्म। हमारे टाइम में जैसे पेरेंटिंग नाम का कोई वर्ड ही नहीं था यार। सही बात है। उसके कोई एसेट्स ही नहीं थे। ट्रू। तो जब आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे मैम, लाइक प्रेशर की बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे बच्चों के पास अलग तरीके के प्रेशर्स और स्ट्रेस थे, और अभी काफी नहीं चेंज। नहीं, उस टाइम बच्चे वर नॉट। देखिए, नो, हाफ ट्रूथ इज बैड, half knowledge is also very bad, but no knowledge is innocence। पता ही नहीं था हमें स्ट्रेस किस चिड़िया का नाम है, हमने कभी बचपन में सोचा ही नहीं। बहुत से बहुत क्या स्ट्रेस होता था कि गेम हार गए, बैडमिंटन खेल रहे हैं हार गए, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा एग्जाम आ रहे हैं, हो ये एक स्ट्रेस होता था, एग्जाम आ रहे। बाकी लाइफ में कोई स्ट्रेस, मम्मी खाना दे देगी, मम्मी खाना बना देगी, और खाना खा लेंगे, बाकी सब मम्मी पापा को संभालना है। सही We बात। were not the part of it। So that is the main thing which I'm saying कि afterwards also even, मतलब आप सोचो, मम्मी डैडी के बाद मेरी जब शादी हुई है तभी भी आई हैड नो प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम started when my children start growing। but then तब तक इंटरनेट आ चुका था। हम्म आई आई वो लोग बोलते हैं इंटरनेट खराब करता है, मैं लोगों को कहती हूँ कम करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट नहीं देखते इंटरनेट का।
They don't see good things which internet can give you. I have done full evolution of mine through internet only. मैंने जीरो से बेकिंग सीखी है टिल पूरा डेकोरेशन को केक डेकोरेशन. जीरो से मैंने क्रोशा सीखा है. आई मेक शॉल्स, एवरी डिजाइन आई मेक. और हम्म इसी तरह से मैंने मतलब आई हैव यूज्ड इंटरनेट फॉर इवॉल्विंग माई सेल्फ ऑल्सो. तो आई हैव उसमें ही सुना स्टोरीज, बता रहे हैं लोग कि मैम किसी तरह से आप हेल्प करो. तो आई स्टार्टेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. तो देन आई थॉट कि ये तो कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देर एंड देन आई स्टार्टेड इवॉल्विंग कि थोड़ा थोड़ा जैसे कई बार क्या होता है, कोई कोई बोलता है नॉर्मल सी बात एंड इट हिट्स यू बिकॉज यू हैव नॉट हर्ड इट बिफोर. हम्म एंड काम की बात होती है. सही बात। छोटी बात में भी इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर एंड गुड लिसनर, विच आई एम. So I have learned through people, I have learned कि ये करोगे तो अच्छा हो जाएगा ये. एंड उसमें अपना अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करियो, उसको हम्म एग्जीक्यूट कैसे करना है. तो दिस इज हाउ द लर्निंग इज डन. यू हैव टू ओपन योर माइंड. टाइट मत रखो कि बड़े हो गए तो बस मैंने सब सीख लिया, डिग्री पा ली मैंने सब सीख लिया. नहीं, आप बच्चे से भी एक बार ही सीखते हो. ट्रू ट्रू। बच्चा कई बार इतनी सी बात होता है मेरे से आके, जब छोटे बच्चे बोलते हैं आंटी मेरी मम्मी ऐसे कर रही है, तो मैंने कहा देखो एक तो मम्मी की बात ऐसे नहीं करते, तो इस बात कोई बात है तो मुझको आंटी को ऐसे ही बताओ, नॉर्मल बताओ. तो उसकी मम्मा कंपेयर कर रही थी नंबर उसकी अपनी सिस्टर से. तो उसको बच्चे को बहुत खराब लगा. आई वॉज अ टीचर बिफोर. हम्म बच्चे कितने प्यारे होते हैं और कितने ज्यादा सीधे होते हैं बड़े हो करके. हम लोगों को और अपने माँ बाप को देख करके ही वो चेंज होते हैं और माँ बाप पहचान नहीं पाते कि उनका हमशक्ल कौन आ गया. बिकॉज से सेम एटीट्यूड दे ऑल्सो ब्रिंग. ट्रू ट्रू। रोल मॉडल काफी काफी ज्यादा। Effect, it's very effective. If you are a role model of your child, then don't break that dream of हम्म a child. हम्म हालांकि मैं मानती हूँ कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन बच्चे को सॉरी बोलने में कोई हर्जा नहीं होता है. कई लोगों को बड़ा ये होता है कि मैं बड़ा हूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं. सही बात है सही लेकिन बात। क्या देखो, एक बहुत बड़ी चीज होती है कि when you feel that you have done something wrong, हम्म then only you should say sorry. बात बात में गलती कर करके सॉरी बोलना भी बेकार है. That ट्रू means you don't know the meaning of sorry, why it is said. ट्रू ट्रू। काफी इम्पोर्टेंट चीज आपने हाईलाइट करी कि एक्सेप्ट करना कोई मतलब इससे कोई छोटा नहीं होने वाला है या फिर कोई उसमें नहीं, हर्ज। छोटे नहीं होते बल्कि दूसरे को हेल्प मिलती है कि नो. राइट। लाइक फॉर मी व्हाट हैपेंड, एक बारी मैं बड़े बच्चों की क्लास ले रही थी. हम्म एंड उस टाइम बच्चे तेज होना शुरू हो गए थे. क्रॉस क्वेश्चनिंग और ये सब जो तंग करने के लिए न्यू मैम को करते हैं, तो कर रहे थे. तो एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा जिसका वाकई में मेरे को जवाब नहीं आता था. एंड वो बच्चे ने इतने कॉन्फिडेंटली पूछा कि मुझे पक्का पता था कि इसको आता है इसका मीनिंग. हम्म। तो मैंने उसको बोला बेटा आई एम सॉरी, ये मुझे नहीं आता, आप समझाओगे मुझको, मुझे लगता है कि आपको आता है. राइट। पहले तो बोलता है मैम आपको कैसे पता कि मेरे को आता है. मैंने कहा इतने कॉन्फिडेंस से जो आप पूछ रहे हो ना, तो आपको क्रॉस क्वेश्चन मैं करूंगी तो वो आपको पता है कुछ कुछ, तो आप मुझे बताओ ना, यू शेयर विद मी, आई डोंट नो दिस. इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर देम कि मैम ने ये बोला कि आई डोंट नो, यू टेल मी. दे वर वेरी हैप्पी. माइंडसेट आपके पेरेंट्स ने आपका बदला है, उनकी थोड़ी गलती है. ट्रू ट्रू। मैं यहाँ पे हमेशा बोलूंगी, हम्म unless until something happens with the child and it is not treated, otherwise parents are first to be blamed. क्योंकि पहली बातें जो बच्चे के दिमाग में जाती हैं वो अपनी फैमिली के थ्रू ही जाती. ट्रू। राइट। कॉन्सेप्शन जो बनाता है वो हम्म लाइफ का कॉन्सेप्शन कैसे बनाता है, द हम्म वे फादर
treats mother, the हम्म, way mother treats children, the way mother treats father, way mother treats grandfather and grandmother, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहला होता है बच्चे का। ट्रू, सही बात है। तो ये और जो आपने बच्चा बोला। फिर कंपेयर करता है कि उसकी मम्मी तो ऐसे प्यार से बोलती है, इतना अच्छे से तैयार हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको सम अप करो ना, इट बिकम्स अ बिग डेजर्टेशन। ट्रू। तो जब डिसएग्रीमेंट की बात आती है, जो हम आप बोल रहे थे कि सही गलत नहीं है, लेकिन पर्सपेक्टिव में पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। अलग पर्सपेक्टिव है और माँ बाप का अलग है। तो वो डिसएग्रीमेंट जो है वो बहुत बार हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन फॉर लाइक अडल्ट चिल्ड्रन और पेरेंट्स भी, क्योंकि देयर इज अ लॉट यस। ऑफ। तो इसको किस तरीके से मतलब एक हेल्दीली हैंडल कर सकते हैं हम? हाँ, देखिए इसको, देखिए दो तरह से हैंडल होता है। हम्म। एक तो डिस्कशन करके हम्म। आपस में, एंड नॉट फादर लाइक मदर लाइक टाइप्स, नहीं। फादर मदर बन के नहीं करो डिस्कस, फ्रेंड्स बन के डिस्कस करो, ओके। विच वेरी फ्यू पेरेंट्स डू, आई नो दैट। आजकल का जो डिफरेंस है, वो रिफ्ट बढ़ती चली जा रही है। अब हम्म। जैसे आपने कहा कि वो लेना है डिसीजन कि क्या करियर चूज करना है। अब हम्म। सपोज फादर इज अ डॉक्टर हम्म। एंड मदर इज अ सपोज एमबीए। बेटा जो है मैथ्स में वीक है, nor he wants to be a doctor, he doesn't like that line only. हम्म। So leave it to him what he wants to be. राइट। कोई ना कोई। और मोस्टली क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात लोग अनदेखी कर देते हैं कि व्हाट इज द पैशन ऑफ द चाइल्ड, हम्म। ट्राई एंड फाइंड इट आउट। राइट। उससे मिलता जुलता करियर अगर रखेगा तो बच्चा हमेशा खुश रहता है। राइट। he राइट। will not worry about money, he will worry that मेरा पैशन जो है, मेरा प्रोफेशन बन जाए तो कितना अच्छा होगा। ट्रू। ट्रू। आपके कहने से जबरदस्ती इंजीनियर तो वो बन जाएगा, पढ़ हम्म। लिख के कुछ भी करके मेहनत करके, बट ही विल ऑलवेज हैव अ रिग्रेट दैट मैंने अपना पैशन क्यों नहीं परस्यू किया। सही बात है, सही बात है। और क्योंकि फिर वो बड़े होके ब्लेम किस पे डालेगा, मदर एंड फादर पे, जब वो बूढ़े हो जाएंगे, आप ही लोगों ने मुझे नहीं बनने दिया। हम्म। तो ये सबसे अगर माँ बाप को बचना है ना, सीधा एक रास्ता है, लेट हिम फ्री, हम्म। हम्म। गाइडेंस बट डोंट इंटरफेयर, हम्म। टेल हिम व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। आजकल तो बच्चों को बताने की जरूरत ही नहीं है, दे हैव गॉट एन नंबर ऑफ types to bring money or to earn money. There's only not three things left: doctor, engineer, and lawyer, and MBA. There's n number of sources to earn money. तो इस अभी उसको कैसा सोचना है, किस तरीके से सोचना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या कई बच्चों को मैंने देखा है डॉक्टर बनने के बाद दे आर डूइंग इंजीनियरिंग हम्म। राइट। बिकॉज दे वांटेड, गलत चूज कर लिया। अब वो चीज एक अलग है, लेकिन फिर भी इफ यू गिव फ्रीडम दैट टू चाइल्ड, के जो भी है, हम्म। जैसा भी है, आपको अपने आप वर्कआउट करना है, तो क्या हुआ ना, उसके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। ही विल लुक इनटू हिज ओन सेल्फ एंड थिंक मैं क्या कर सकता हूँ। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इन इट सेल्फ, बिकॉज बच्चा उस टाइम ये रियलाइज करता है कि पापा मम्मी ने तो बड़े बड़े, मतलब आपने बड़ा उसके ऊपर वो करा है, ट्रस्ट करके उसको उसके ऊपर छोड़ा है, तो ही विल नेचुरली ट्राई एंड डू हिज बेस्ट। एक सेंस हम ऑफ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। विश्वास नहीं करते, हम्म। द वर्स्ट पार्ट वी डू। ट्रू। ज्यादा प्यार करने के चक्कर में, प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने बच्चों की बात पर
विश्वास नहीं करते। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। आप अपने बच्चे पे विश्वास दिखाएंगे हम्म तो देखिए उसमें कितनी पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है, कितना खुश उसके फेस से आपको दिखाई देगा कि ही इज सो हैप्पी। हम्म हम्म इट गोज फॉर अ यंग चाइल्ड ऑल्सो एज वेल एज अडल्ट चाइल्ड ऑल्सो। ट्रू ट्रू, सही बात है, सही बात है। बेसिकली विथ पेरेंट्स, चिल्ड्रन चाहे अडल्ट हो चाहे बच्चे हो, हम्म दे विल बिहेव लाइक किड्स ओनली। हम्म एक दो बातों में तो मम्मी ये वाला पराठा बना दो, बहुत अच्छा बनाते हो, वो बच्चा ही बोलता है। और इट इज नेसेसरी कि आदमी के अंदर कहीं कोने में एक बच्चा जरूर जिंदा होना चाहिए। द द वर्स्ट पार्ट इज द पेरेंट्स think that when they grow old, they want sometime due to some factors, like in old age you have a main factor anxiety, insecurity, हम्म। and sometimes they are not able to cope up with it because both the children are away, so they cannot they think that हमसे दूर रह रहे हैं। वो फैक्टर पता नहीं क्यों आ ही जाता है। तो हम्म इट इज बेस्ट जब जैसे दो बच्चे हैं, कभी कोई चक्कर लगाए कभी कोई चक्कर लगाए, तो टू मेक देम थोड़ा सा, जिनको ऐसे लगे कि नहीं हम आपका ख्याल रखते, हम्म। तो देयर इज एश्योरेंस उनको मिलती रहनी चाहिए। दैट इज द मेन थिंग एक्चुअली। आप किसी को बांध के नहीं रख सकते बच्चे को। राइट, सही बात तो है। यही चीजें हैं कि whenever I tell my mother, मैं कहा मैं आप जैसे कितनी कोशिश करती हूँ बनाने की, लेकिन आप जैसा मेरे से बनता नहीं। तो हंस पड़ती है, नहीं बेटा बन जाएगा, अब तो मेरे से नहीं इतना अच्छा बनता है। मैं कहा नहीं मम्मा, आपके जैसा नहीं बन सकता कभी भी। वो आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, मेरा इतना थोड़ी है। तो हम्म, वही बात है, यही सब चीजों से बॉन्डिंग बनी रहती है। उनको ऐसा लगता है कि दे फील नीडेड, लाइक मतलब आई हाँ, दे फील के दे आर लेफ्ट अलोन। लेफ्ट अब अलोन। सबसे मजेदार बात है कि उनको अपना घर छोड़ के आना नहीं है। उनको वो, बिकॉज शी इज सो यूज टू टू दैट सराउंडिंग। ट्रू, आप सही। कहीं भी 50 साल रह लो, आपका नहीं मन करेगा वहां से जाने का। ट्रू। चाहे उसमें कितने प्रोज कॉन सब मिला लो, हम्म नेगेटिव पार्ट भी मिला लो, फिर भी उनको नहीं छोड़ने का मन करेगा। तो दैट इज बीइंग एक पुराने दरख्त को अप्रूट करना हम्म इज नेवर गुड, बिकॉज वो उनको वो चीज वहां दूसरी जगह जाएंगी तो वो एग्जैक्ट सेम चीज उनकी जो सेटल्ड लाइफ है उसको अप्रूट करना इज नॉट ओके। सो इट इज बेटर हम लोग अभी है तो हम लोग अभी चक्कर काटते रहे, मिलते रहे, तो खुश हम्म हो जाती है। हम्म। तो दैट इज द मेन थिंग। मैं सब पेरेंट्स से कहना शुरू कर से ये कहती हूँ, एक तो ओवर प्रोटेक्टिव मत होइए, और अपने बच्चों को गाइड जरूर करिए, इंटरफेयर नहीं करिए। और एक बच्चों की मैरिज में कभी भी इंटरफेयर नहीं करें, क्योंकि वो दोनों तो एक हो जाएंगे, आप ही रह जाओगे खिचड़ी में से घी निकल जैसे जाता है ना, ऐसे कि हम्म हमने तो कुछ नहीं कहा था, हम तो आपस में लड़ाई कर रहे थे, आप बीच में ऐसे ही बोल पड़े। तो देखो किसी को आप मौका क्यों देते हो? अनलेस अंटिल दे आस्क फॉर हेल्प, दे हम्म आस्क और दे वांट टू सीक अ गाइडेंस, हम्म बिकॉज दे हैव गॉट, आपके पास तो उतने साल के बाद उतना एक्सपीरियंस होगा हम्म जितने के वो अभी हैं। उनके पास कितने एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ हो गए। अगर आप धीरे धीरे करके टटोल के पूछेंगे भी ना, तो यू विल इंक्रीज योर नॉलेज फॉर सच अ वास्ट इंक्रीज इन नॉलेज यू विल हैव। ट्रू, ये कई बार होता है, आई अग्री। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा इनको नहीं पता होगा, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन हम। हम सोचते हैं, लेकिन उनको उससे भी डेप्थ में ज्यादा पता होता है। ट्रू। मतलब मैं ऐसे ही बात कर रही थी
कि पापा आपको तो नहीं पता होगा ये थे। तो मेरे पापा क्या बोलते हैं, मेरे पापा कहते हैं, जब जे आर डी टाटा की टाटा टाटा की डेथ हुई थी, रतन टाटा, तो कहते हैं कि मैं इनसे तो मैं मिल चुका हूँ, मैं इनके पापा से मिला हुआ हूँ, उन्होंने मेरा वो लिया था इंटरव्यू। तो सोचो, मैंने सोचा था रतन टाटा से नहीं मिले हुए, तो वो तो उनके डैडी से भी मिले हुए थे। सी, वो इट हैपेंस इन सच अ मैनर दैट जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं ना, एंड माय डैड वाज द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ बीएचयू हम्म। इज, हम्म। अभी भी लोग, जो उनका रीयूनियन होता है, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है एक, उसमें उनको बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ओनली थिंग, ही कैनॉट ड्राइव, ही कैनॉट वॉक फॉर लॉन्ग, ही इज 90। तो दैट इज सम राइप एज। मैं डैडी से कहती हूँ, डैडी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी अच्छी चीज पढ़ा करो, मेरे को बताया करो। मैं रोज बात करती हूँ अपने पापा से, ओके। बिकॉज आई एम सो प्राउड दैट स्टिल ही इज मेंटेनिंग, एंड यू नो, वो अपने आप नहाते हैं, अपने असेंशियल, अपने इनर्स धोते हैं, बाहर डालने का काम मम्मी करती, क्योंकि उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता डैडी से ज्यादा देर तक, कोई डिसबैलेंसिंग हो जाती है उनको थोड़ी सी, लेकिन अभी भी चलते, विदाउट स्टिक चलते धीरे धीरे। तो इट इज अ बिग थिंग दैट ही इज मेंटेनिंग हिज हिमसेल्फ। तो और क्या चाहिए, हम, मैं और मेरा भाई तो, कोई जाओ या मत जाओ, मैं और मेरा भाई तो प्लान बना लेते हम लोग, एज अ फैमिली ऑफ फोर, मेरा भाई, मैं और मेरे मम्मी पापा, हम तीनों का प्लान बना ले, हम लोग ऐसे हंसते जैसे बचपन में कोई जोक पे हंसते थे ना, इस तरह से वी लाफ लाइक अ फैमिली। हम्म। माइंडसेट को पॉजिटिव नहीं रखते हैं आजकल लोग। पेरेंटिंग में सबसे पहली चीज होती है, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो, अपने बच्चे को पॉजिटिविटी दो, इंस्टेड ऑफ सेइंग तू ये नहीं कर सकता, तू ये कर सकता है, यू कैन चेंज योर सेंटेंसेस। दिस इज हाउ इट पेरेंटिंग बिकम्स इफेक्टिव। नहीं कर सकता तो उसको भी पता है, आपको भी पता है, किसी को बताने की क्या जरूरत है। जो कर सकता है वो बताइए, तो दूसरा सुन के, और आपका बच्चा ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होगा, अंदर से ही बूस्टअप हो जाएगा, उसका मोराल हाई हो जाएगा। एंड मोराल हाई ये तो वो अपना पूरा दम लगा देगा वो चीज करने में, बट दैट नीड्स अटेंशन। कुछ बच्चे जानबूझ के ऐसा करते हैं कि उन ऐसा लगता है जैसे उनको अटेंशन सीख करनी है, नॉट द अदर पार्ट। एडी एडीएचडी नहीं, एचडी नहीं, सिर्फ एडी, क्योंकि उनको कोई अटेंशन मिलती ही नहीं है घर में, तो बाहर जाके क्योस क्रिएट करके वहां अटेंशन सीख करते हैं। अब देखो कितना नेगेटिव वे है। मैंने देखा है, एक घर पे वो नर्स थी, लेडी, शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब इतनी स्ट्रिक्ट थी, आजकल तो नहीं, बहुत पहले की बात है, व्हेन आई नेवर हैड एनी चाइल्ड ओनली। वो अपने बच्चे को स्केल से मारती थी जरा सा गलती होने पे, और वो बच्चे को मैंने देखा स्कूल में, बस में सबको बुली करता था, क्योंकि वो बुली होता था इसलिए वो बुली करता था, अटेंशन क्रिएट नेगेटिव तरीके से करता था, अपनी अटेंशन, मैं भी कुछ हूं, मतलब मेरी इंपॉर्टेंस भी देखो, मैं ऐसे बुली करूंगा तो मेरे को सब लोग पूछेंगे। ये सारी चीजें दे आर और इंटर रिलेटेड। तो हाँ, आपने जैसे काफी सारे पॉइंट्स आपने कवर किए, और खुद से ही मतलब एक बहुत अच्छा बेस आपने बताया कि राइट फ्रॉम लाइक
जब बच्चे छोटे होते हैं और फिर उम्र में बड़े होते हैं तो किस तरीके की बॉन्डिंग, किस तरीके से बच्चों ने भी समझना चाहिए हम्म। को। It एंड never, see, clapping is not from one hand. It is always two hands are involved. तो two hands में mother, father and son, daughter जो भी है, पेरेंट्स एंड वो दोनों का होना बहुत जरूरी है. हम्म बट पहल इसमें बच्चा नहीं करता है. हम्म पहल जो होती है, फर्स्ट मूव इज ऑलवेज फ्रॉम द पेरेंट्स. यहाँ पेरेंट्स अगर ईगो ले आएंगे ना, then it is impossible to handle the children. You cannot do parenting. आप राइट। देखो बॉन्ड ऑफ लव में भी, आप जिससे प्यार करते हो ना, उसको आप एक टाइम नाराज रहोगे, 1 घंटा रहोगे, 2 घंटा रहोगे, एक दिन रहोगे, आ, आखिर करके आप ही बोलते हो कि नहीं भाई अच्छा दो, तुमको बुरा लगा, मैं सॉरी बोल रही हूँ. बोलते हो ना. नो टेंशन, नो स्ट्रेस एंड नो प्रेशराइजेशन. हम्म। कुछ माँ बाप बड़े अड़ियल होते हैं, कहते हैं मैं डॉक्टर बना, मेरे को गोल्ड मेडल मिला, तुम्हें भी लेके आना है. अब ये जबरदस्ती का प्रेशर क्यों उसके कंधों पे रख रहे हो बच्चे के? हम्म यू कैन बी केपेबल ऑफ दैट. इफ ही कम्स फर्स्ट ऑल्सो, ही कैनॉट ब्रेक द गोल्ड मेडल, तो भी आप ताना मारोगे. तो उसको तो पता है. इससे आप सोचिए कि जो आपको हल निकालना है, इट शुड बी preferably for a long term period, हम्म so that the bonding with the parents and the adult son or daughter should not be hindered, should be appreciated by हम्म both the sides. हम्म And they should not feel awkward कि मम्मी पापा आ जाते हैं कभी भी टपक पड़ते हैं. ये बात नहीं होनी चाहिए. Always try and take, ask them whether they are free for them to come. They are dropping on such a date. This पहले से बताइए. अगर उनकी सेमिनार और वो चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं, लाइंड अप है, तो प्रेफरेबली आप लोग नहीं जाइए. इंडियन पेरेंट्स बड़े मजेदार होते हैं. वो क्या करते हैं, टिकट कटा ली, उसके बाद पूछते हैं. तो क्या फायदा पूछने का? टू पेरेंट्स, आई एग्री. तो हम्म उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ उसको बूस्टअप करने में, उसका मोरल बूस्टअप करने में बच्चे का, आप हमेशा थे, हो और रहने चाहिए. हम्म ये सोच के आपको उनकी हेल्प करनी है. आजकल ये बहुत हो रखा है कि कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि उसने माँ बाप को क्यों छोड़ा ओल्ड एज होम में. कभी शायद अगर कोई पूछता, तब समझ में आता क्लैरिटी से कि क्या थी बात एक्चुअल जो छोड़ा. कुछ लोग तो उसकी आड़ में आके छोड़ते हैं कि एक ने छोड़ा तो हम भी छोड़ दें. दैट इज नॉट द थिंग. फर्स्ट वाले ने क्यों छोड़ा था? एवरीवेयर देयर इज स्मोक, देयर इज फायर. फायर तो दिख गई, स्मोक उड़ता हुआ क्यों था वो नहीं देखा. तो यू शुड ऑलवेज नो टू साइड्स ऑफ द स्टोरी, देन ओनली कम टू अ डिसीजन. डोंट से दैट द, वो बूढ़े माँ बाप, मैंने माँ बापों को भी कहीं देखा है, बेफजूल के इल्जाम अपने ही बच्चे पे लगाते हैं और अपनी बहू पे लगाते हैं. वही है, संस्कृत में बोलते हैं जस कर्तव्य तस भोक्तव्य. तो बहुत छोटे में इतनी बड़ी बात जिसने भी कही है, उसने कुछ सोच समझ के कही होगी. हम्म और दिस इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी वन, not only father mother, हम्म each and every individual of us. So if we try to become, in the end I'm trying to tell you, if we try to become a good human being, empathy, kindness, everything, and of course the daily routine जो होता है, उसको अपनी लॉयल्टी से उसको करें. Try and avoid those people
I'm telling for the younger generation who are toxic. And as soon as you find that this person doesn't love me, or this person is not worth, or he thinks that I'm not worth, please go away. Silently make a move and go away without fighting. It is your own decision what you like. हम्म। Nobody can force you. तो लाइक थैंक यू सो मच, आपने मतलब काफी सारे डोमेन्स में और काफी सारे एरियाज इतने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करे। सो या फाइनली आई जस्ट वांट टू से कि आप आपने आपका टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट।